47% students used to immediately enter into the industry. But for last 2 years, like 2020 and 2021, the employability is slightly changed and it is declined by 2%. Like look at that, it was 47 and now it is 45% in 2021. So this is what the this is what the current status of employability. Which domain is most employable talent? So you people, some of are from pharma and some are from the polytechnic. You can see where the polytechnic and pharmacy stand. Look at the last one, polytechnic and B pharma. The employability last year, 2020, it was 32. Now it is 25. Okay. In case of B pharma, last year it was 45. Now it is dropped down to the 37%. See why it happened? This has happened with some impact, with some lacunas that is required by the employers from the future employees, that is students who are passing out. Which sector having hired the most? Look at, in 2015, the hospitality including aviation and traveling, core sectors like oil, gas and steel, they hired most of the employee. In 2060, it is healthcare, transport, e-commerce and retail, where Amazon, Flipkart or similar kind of business get boomed. So at that time, it was the area of employment or hiring. But look at the last 2 years. Last 2 years. Let's check the last 3 years. 2019, 2020, 21. It is software industry, hardware industry and manufacturing. Followed by 2020, banking, financial sector, insurance, then IT's internet business. Look at this. Internet business previously nowhere in the hiring. Look at this. Now, yes. सर स्लाइड चेंज नहीं झाली. Slide is not changed. No, sir. My God. Does it happen with previous speaker also? Presentation mode मध्ये टाका ना. No, it is in the presentation mode only. Now is change. झाली चेंज आता. सेकंड स्लाइड आली. Okay. Got it. I have to go to both the slides. Can you see this employability change? Yes, sir. Okay. Now I want to show you domains with most employable talent, right? Yes. Look at this last two, Polytechnic and B Pharma. Polytechnic last year 2020 में 32% employable skill थे, talent थे. 2021 में post pandemic it is reduced to 25%. Got it? Yes, sir. Yes, sir. So and look at the next part. Which sector has hired the most? Which sector hired the most? It is in 2021 software, hardware, IT, internet business. In 20 banking and financial was good sectors and somewhere in the internet business. But 2021 software, hardware, IT, internet. These are the four areas. Okay. Along with that, there is another industry which is continuously hiring, that is healthcare sector, pharma sector. Okay.
Now look at that. Which states with a maximum supply of employable talent? All you follow Marathi. Is there anybody who doesn't follow Marathi? ऐसे कितने लोग हैं क्राउड में कि जो मराठी बिल्कुल नहीं समझते हैं? यस चित्राली मॅडम. सर फक्त एकच आहे जो मेघालयाचा स्टुडंट आहे, त्याला मराठी Okay. नाही समजत, बाकी सर्व आहे मराठीच आहे आपलं. हिंदी समझते त्याला. हो. ओके ठीक है ठीक है. सो अभी मैं ये बता रहा हूं कि कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट सप्लाई किया है एम्प्लॉयबल टैलेंट्स का. मतलब कौन सी ऐसे स्टेट है जहां से हाईली एम्प्लॉयबल स्टूडेंट्स बाहर निकले. तो उसमें लास्ट 2 इयर्स का डाटा बताता है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड एनसीआर, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश. ये 3-4 स्टेट्स है जो लगातार हाईली स्किल्ड एंड एम्प्लॉयबल टैलेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं. यहाँ के कॉलेजेस अच्छे हैं, यहाँ की शिक्षा पद्धति अच्छी है. सो दिस इज व्हाई एवरी ईयर top 3 states are selected by the CII, and you can see that Uttar Pradesh is consistently in the list along with Maharashtra and Andhra Pradesh. एक्सक्यूज मी सर. Yeah. सर तुमचं स्लाइड शो नाही झालेला, म्हणजे फक्त मोठी नाही मॅडम तो दिसत. स्लाइड शो झाला की नाही की स्क्रीन चेंज होत नाहीये. दॅट इज द प्रॉब्लेम. हो का? एंटायर स्क्रीन शेअर केली का सर तुम्ही? एंटायर स्क्रीन शेअर केल्यानंतर होते चेंज. शेअरिंग मध्ये एंटायर स्क्रीन करा. जस्ट अ मिनिट. I'll stop युअर the एंटायर sharing. स्क्रीन. Share entire screen. Okay. Now I can't find. Okay. Okay. Can you see it now? येस सर. Yes, sir. Now change Yes, sir. Yes, this sir. inevitable economic shift. येस सर. इज इट विजिबल? Yeah, fine then. Slide number 7, right? No? This was the 6, and now Yes. we are at the 7. येस. Yeah, that's wonderful. So now look at this. Inevitable economic shift of skill and employability. In 2020, what happened? Or since 2019, what happened? Everybody affected by pandemic. And the pandemic impacts on unemployment we are slowly reverted this year. जो पैंडेमिक का इम्पैक्ट था एम्प्लॉइंग पे वो कम हो रहा है. While most professions जो भी मैंने लिस्ट किया था वो फिर MBA हो, फार्मेसी हो, टेक्निकल हो, बीटेक हो या फिर पॉलिटेक्निक हो या फार्मेसी हो, almost all professions are reliant on the skills and proficiencies of their jobs. The internet has offered venue to acquire necessary skill sets. See, what does it mean? Internet offered venue. Apart from the classroom teaching, internet provided good resources like Coursera, Upskill, Upgrade, number edX. So these are the internet-based education systems are available for everybody free of cost, with cost, to acquire necessary skills required by the industry. And throughout this, education remain the unbroken link between employability and economical sustainability, and which has become the link between employability and economic sustainability. So look at this. See, this is very important to understand that colleges, schools, or educational institutes, they are providing much better resources for employability. And where we are standing today, some of you people are in the last year of your polytechnic or pharmacy. You people need to understand what is the requirement of industry. So post-COVID, emergence of skill gap during COVID, the emergence of skill gap is between 45 to 46%. Reason is because this is the reason for
यूथ एम्प्लॉयबिलिटी कम क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ स्किल गैप। अब देखो रिपोर्ट ये बता रहा है फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, बीकॉम और बीए कोर्सेस आल्सो रिटेन देयर पोजीशन इनटू एम्प्लॉयबिलिटी। अभी फिलहाल यही कुछ कोर्सेस बचे हैं जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी हो रही है, दे आर गुड इनटू दी जॉब्स। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको जो फार्मा करके है एंड अनएम्प्लॉयड फॉर लॉन्ग टाइम। ही विल डेफिनेटली गेट प्लेस्ड इनटू द डिजायर्ड इंडस्ट्री within very short period of time of completion of their courses. So this is what the beauty of our courses, whether it is polytechnic or pharmacy. Then on the basis of this, what are the skill sets, the skill gap that we discussing? What are that skills required to reach expectations of industry? ऐसे कौन से skills है जो इंडस्ट्री हमसे चाहती है और हम वहां पहुंच सकते हैं? ऐसे कौन से स्किल्स हैं? तो वो स्किल को कहा गया है सॉफ्ट स्किल्स। नाउ व्हाट आर दी सॉफ्ट स्किल्स? कैसे पहचानेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? तो सॉफ्ट स्किल इज एबिलिटी रिक्वायर्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन फॉर फाइंडिंग अ सुटेबल जॉब, इट्स मेंटेनेंस एंड इट्स प्रमोशन। लुक एट दिस केयरफुली। आप जॉब चाहते हो फिर भी आपको सॉफ्ट स्किल चाहिए, आपके पास जॉब है उसको मेंटेन करना है फिर भी आपको सॉफ्ट स्किल चाहिए, आपके पास जॉब है आपने मेंटेन किया है लेकिन आपको प्रमोशन भी चाहिए, स्टिल यू नीड सॉफ्ट स्किल्स। तो इन डेफिनेशन दीज आर एबिलिटीज एंड ट्रेट्स दैट पर्टेन टू द पर्सनालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Thank you. So these are the abilities, traits that pertain to the personality, attitude and behavior. Okay. Now what are the reasons स्टूडेंट खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते, इंटरव्यू में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते? ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये होता है? तो उसमें 4 मेजर रीजन है। एक है लैक ऑफ नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, दैट इज हार्ड स्किल। नर्वसनेस, हेजिटेशन, दिस इज एटीट्यूड। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगेन एटीट्यूड। एंड लैक ऑफ इंटरपर्सनल स्किल, दैट इज सॉफ्ट स्किल। इज दैट क्लियर? हमें अगर कोई जॉब चाहिए तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज हार्ड स्किल। उसको हमने कैरी करना चाहिए, अपने पास वो एटीट्यूड होना चाहिए, नॉलेज वाला एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड। और ये तीनों को छोड़ के हमारे पास और एक स्किल चाहिए, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स। इन चारों के बेस पे हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, हम खुद को पेश करते हैं, भले वो इंटरव्यू में हो, किसी गैदरिंग में हो, कभी प्रेजेंटेशन देना है या किसी से बात करनी है, ये तीनों चीजें चाहिए अपने पास। अगर देखो, अगर आपको किसी से बात करनी है, किसी टॉपिक पे आप चर्चा कर रहे हैं, तो आपके पास उस टॉपिक का पूरा नॉलेज चाहिए, आपके पास लोगों में मिक्स होने का, लोगों के साथ जुड़ने का स्किल होना चाहिए, आपके पास वो हेजिटेशन नहीं रहना चाहिए, नर्वसनेस, घबराहट नहीं होनी चाहिए कि मैं कैसे बात करूं, ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, बात करने का विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये सब मिला के फिर आपके पास एक अलग से स्किल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल और सॉफ्ट स्किल। अब देखो, सॉफ्ट स्किल सबसे ज्यादा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है। अब देखो, इसमें लैक ऑफ नॉलेज कितनी परसेंट में रीजन बन रहा है? 8% में। मतलब 8% लोग हैं जो नॉलेज की वजह से खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। 12% लोग ऐसे हैं जो हेजिटेशन फील करते हैं, नर्वसनेस फील करते हैं। 17% लोग हैं जिनके पास वो विश्वास नहीं है कि खुद को प्रेजेंट करें। लेकिन सबसे आखिर में 63%, 60% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, इसीलिए वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, इंटरव्यू में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जॉब नहीं कर पा रहे, या
सोसाइटी में मिक्स नहीं हो पा रहे। ये 4 मेजर रीजन है और ये सर्वे बताता है। ओके, तो करना क्या चाहिए? What are the efforts you are putting to achieve your aim? अगर आपको कुछ हासिल करना है, भले आपका जॉब हो, मार्क्स हो, या कोई प्रेजेंटेशन डिलीवर करना है, उसके लिए आप इन चारों रीजन को लेके क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, आप कितना प्रयत्न कर रहे हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है, ये सारा देखने के बाद कितने लोग हैं आपके ग्रुप में या आप पूरी अपनी जो क्राउड है उसमें, कि जो सही में लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? वो होगा इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, इन टर्म्स ऑफ जॉब, और अगर इंटर्नशिप, किसी भी एरिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, इजंट इट? सबको सक्सेसफुल होना चाहिए, सही है ना? Yes, sir. Yes, सब sir. लोग कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। किसी भी चीज के लिए ना, ये जो 4 मैंने रीजन बताया ना, वो आपके पास नील होनी चाहिए। आपके पास आपका एटीट्यूड होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। तब जाके आप, मतलब भले आपको जॉब नहीं करना है, लेकिन आपको खुद का जॉब, बिजनेस ज्वाइन करना है, बिजनेस शुरू करना है, तब भी आपके पास नॉलेज चाहिए, प्रेजेंटेशन या आपको पेश करने की, खुद को पेश करने की स्किल चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और लोगों को जुड़ने की कला होनी चाहिए आपके पास, isn't it? तो ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहां से हम इंप्रूव करके हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स को अचीव कर सकते हैं? देन व्हाट डू यू नीड टू हैव फॉलोइंग स्किल्स? पहले तो आपको ठीक से कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। कितने लोग हैं जो प्रेजेंटेशन दे चुके हैं इन द क्राउड? कितने लोग हैं कभी ना कभी क्लास में, क्लास के बाहर, रिसर्च गैदरिंग में, कॉन्फ्रेंसेस में आपने प्रेजेंटेशन दिया है, ओरल, पोस्टर, कैसे भी? आई वॉन्ट टू हियर, कितने लोग हैं? एनीबडी? नोबडी फ्रॉम योर क्राउड? Yes, I can't hear you. Nobody from all the students. कोई तो होगा जिसने प्रेजेंटेशन, आपने सेमिनार Yes, दिए sir. होंगे क्लास में, Yes, sir. सेमिनार दिए हैं? Yes, sir. गुड। तो बताइए, आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? Komalinga. कोमल। यस कोमल, आपने जब प्रेजेंटेशन दिया, सेमिनार दिया, तो जब आप स्टेज पे चढ़े थे तो आपको पसीना आ रहा था, आपको घबराहट महसूस हो रही थी, हार्ट बीट बढ़ी थी, ऐसा कुछ फील किया आपने? Yes, sir. यस। ये किसकी वजह से है? हमें डर लग रहा था कि हम कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, जो मुझे डिलीवर करना है टॉपिक, वो सही से जाएगा कि नहीं जाएगा, डर लग रहा था, इजंट इट? Yes, sir. तो हमें यहां पे खुद को एडवांस करना है, कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। मेरा प्रेजेंटेशन सही ही होगा, आई एम गोइंग टू क्रैक दिस इंटरव्यू, आई एम गोइंग टू बैंग ऑन दिस प्रेजेंटेशन। ये हमारे पास एटीट्यूड होना चाहिए। बिहेवियरल स्किल, आप स्टेज पे चढ़ने के बाद आपकी नजरें आपके ऑडियंस की तरफ होनी चाहिए, आपके क्लासमेट जो सामने बैठे हैं उनके तरफ आपकी नजरें होनी चाहिए, ना कि झुकी हुई। आपके हाथ जेब में नहीं चाहिए, आपके हाथ सामने चाहिए, आपको पसीना नहीं आना चाहिए, योर बॉडी शुड बी कॉन्फिडेंट, आपको एक पावर पोजीशन में रहना है। ये है बिहेवियरल स्किल्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, अचानक से क्या हुआ, लाइट चली गई, प्रेजेंटेशन दे रहा था, लाइट चली गई, अब मैं क्या करूं? इमीडिएटली देयर शुड बी प्लान बी विथ यू। डिसीजन होना चाहिए आपको कि इमीडिएटली क्या करना है, नहीं तो वहां पे स्टेज पे घबराहट हो गई, सामने फिर सॉरी, ये नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इन यू। लिसनिंग स्किल, अगर किसी ने आपको बीच में टोक दिया कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे पॉजिटिव नहीं जा रहा है, आई डोंट फाइंड एनी सेंस इन योर प्रेजेंटेशन, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप उसको सुनो एंड देन स्लोली रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट ऑन इट, रिस्पॉन्ड टू इट।
प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रायोरिटी मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, leadership traits, stress management. All these skills are combinedly known as soft skills. Is that clear to all? Soft skill का मतलब समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम ना एक एक करते सॉफ्ट स्किल देखेंगे धीरे धीरे। तो इसका इंपॉर्टेंस कहां पे नजर आता है? ये नजर आता है हमें टू हैंडल द इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल अपने ग्रुप में, आप आपकी क्लास में सेमिनार प्रेजेंट कर रहे हैं, आप और आपका क्लासमेट, आपके दोस्त, और आप और आपके टीचर, मतलब आपके सुपीरियर। ये जो इन्वायरमेंट है ना, इसको बोलेंगे हम इंटरपर्सनल इन्वायरमेंट। और इसके बीच में जो रिलेशन होंगे ना, वो होंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो क्लास छोड़ के अगर हम बाहर आते हैं, अगर आप जॉब में चले गए, अगर आप जॉब में जाते हैं ना, आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो आपके कलीग है, और जो आपको सुपरवाइज कर रहे हैं वो आपके सुपीरियर है। इनके साथ आपका व्यवहार कैसा है? आपके दोस्तों के साथ, आपके कलीग्स के साथ आपका व्यवहार कैसा है? सॉफ्ट स्किल का सिंपल मीनिंग है व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक कला। आप व्यवहार इन द सेंस ओनली इंटरैक्शन। तो इसमें अच्छे डिसीजन लेने के लिए आपके पास सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, ठीक से कम्युनिकेट करने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल चाहिए, एंड हैव अ गुड इंप्रेशन एंड इंपैक्ट टू गेन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अगर आपने किसी चीज के लिए आउट ऑफ वे, नॉट आउट ऑफ वे मीन्स आउट ऑफ वे इन द सेंस ऑफ गलत करके नहीं, गलत करके नहीं, लेकिन आपने कुछ इस तरह से आपके टीम लीडर को इंप्रेस किया बाय यूजिंग कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इसका बहुत ज्यादा रोल रहेगा कि आपको प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। आपका एक अलग से इंप्रेशन वहां रहेगा। Isn't it clear? Yes, sir. Yeah. Yes. Now let's start with the communication skill as a soft skill. मैं कुछ एक 7-8 स्किल को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पूरी की पूरी तो नहीं हो पाएगी बिकॉज इट्स एंटायरली अ वर्कशॉप काइंड ऑफ थिंग। इट टेक्स अनदर 7 days टू कंप्लीटली go through the each and every skill. Okay, so today we'll just brush up the skills कि क्या है communication skill and why it is comes under the soft skill. See, communication मतलब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं मुझसे? Yes, sir. मुझे सिर्फ 3-4 लोग हैं जो सुनाई दे रहे हैं कि मेरे साथ वो बात कर रहे हैं, और पूरी क्लास में शायद हमारे पास 60 से ज्यादा बच्चे हैं, है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. 60 में से सिर्फ 3-4 लोग हैं दोज हु आर गुड इन द कम्युनिकेशन। बाकी सब लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? मैं कैसे बात करूं? अगर मुझे कुछ पूछा तो, मुझे अगर कुछ आया नहीं तो, पता है कम्युनिकेशन हम बाय बर्थ सीख के आए हुए हैं। जिसको भाषा आती है, द वन हु कैन स्पीक, he is a good communicator. Problem is lies in the self awareness. हमें पता ही नहीं है कि वो मेरे पास है। ऐसा क्यों होता है? हेजिटेशन, डर लगता है, और यही डर हमें ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे? जब तक आप आपकी बात सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाओगे, यू कांट बी अ गुड कम्युनिकेटर। कैन एनीबडी टेल मी कि बच्चा बोलने कितने साल में लगता है? 1.5 साल। 1.5 साल। ओके, अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर लिया कि 1.5 साल के बाद बच्चा बोलता है।
उससे पहले कुछ चाहिए होता है उसको, खिलौने चाहिए या खाना चाहिए, दूध चाहिए, तब कैसे बात करता है वो? कैन अ चाइल्ड स्पीक इवन बिफोर 1 ईयर? रोता है वो। रोता है। रो- अब देखो ये जब रोता है ना, तब उसकी माँ को पता चलता है कि ये किस लिए रो रहा है, ये खिलौने के लिए रो रहा है या दूध के लिए रो रहा है, खाने के लिए रो रहा है, उसकी मम्मी को पता चलता है। और उसको ये भी पता चलता है कि इसको कुछ परेशानी है, उसके पेट में दर्द है, उसके पाँव में मोच आई है, उसको गर्दन में मोच आई। मदर कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना वो ये है, जरूरी नहीं कि आप शब्द से ही बोले। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एग्री करते कि नहीं करते? यस Yes, सर। sir. हम पूरी दिन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं नॉन वर्बल। अब देखो, आपका जो पॉलिटेक्निक है, समझो कि पॉलिटेक्निक के सामने एक हाईवे है, हाईवे के उस तरफ आपके दोस्त है, इस तरफ आपका एक ग्रुप है, उस तरफ एक ग्रुप है। आपके ग्रुप ने वहां से बिना बोले सिर्फ ये पूछा क्लास शुरू हुआ कि नहीं हुआ, आपके कुछ कोड वर्ड से, कोड साइन से, और इधर वाला ग्रुप बताता है नहीं नहीं अभी तक वो वाले सर नहीं आए। मतलब देखो, बिना कोई शब्द यूज किए आप लोगों ने एक दूसरे को बता भी दिया कि वो टीचर नहीं आए हैं, वो क्लास शुरू नहीं हुई है। या तो सिर्फ आप जाते जाते आपने सिर्फ घड़ी की तरफ हाथ करके बोलना है ऐसे, तो सामने वाला आपको बता देगा कि हाँ ये टाइम पूछ रहा है। होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. होता है। Yes, होता है। लेकिन Yes, आपने sir. सिर्फ ऐसा करना है, हाथ में हवा हवा में ऐसा हाथ हिलाना है, और आप मन ही मन में बोलना है कि टाइम क्या हुआ है। उसको पता चलेगा कि ये क्या पूछ रहा है? नहीं sir. No, sir. नहीं पता चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट पहले वो घड़ी की तरफ हाथ बोल, मतलब रिस्ट की तरफ, उसके हाथ में घड़ी नहीं है लेकिन उसने रिस्ट की तरफ उंगली की और बताया, पूछा कि टाइम कितना हुआ, तो उसने बता दिया टाइम कितना हुआ है। लेकिन इसमें वो क्लियरली पॉइंट कर रहा था कि मैं क्या मांग रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, है ना? तो ये जो चीज है ना, ये है कम्युनिकेशन, और ये जितनी इफेक्टिव होगी उतनी ज्यादा आप सक्सेस की तरफ जा सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल फॉर्म अ कॉर्नरस्टोन ऑफ सॉफ्ट स्किल। Every human being has essentially and effectively communicate with others. Effective communication is the hallmark of one's education. देखो, अगर कोई आपके क्लास में, आपके बाहर, आप जब किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, कोई एक लड़का होगा, लड़की होगी जो बहुत अच्छे से इंग्लिश, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा शी मस्ट बी फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल, शी मस्ट बी फ्रॉम अ वेल एजुकेटेड फैमिली। हाँ, उसके घर में ही इन्वायरमेंट होगा इंग्लिश का, इसलिए वो इंग्लिश अच्छा बोल रहा है, बोल रही है ना? ऐसा होता है ना? Yes, तो sir. कम्युनिकेशन इज अ हॉलमार्क ऑफ वंस एजुकेशन। The ability to speak fluently using right words in the right order in a good communication. तो अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करना, सही जगह पे उसको यूज करना, यही कम्युनिकेशन। समझे? Yes, Yes, sir. sir. आपको पता है आज के करंट टाइम पे बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक एक्टर जो कि बहुत अच्छा ओरेटर है, और ये उसलिए नहीं है कि वो एक्टर है, ये इसलिए है कि वो बहुत अच्छी तरह से शब्दों का इस्तेमाल, सिंटैक्स मतलब पैराग्राफ या वाक्य को बना सकता है। पता है वो कौन है? आपको टेडेक्स पता है? टेडेक्स कितने लोगों को पता है? टेडेक्स, टेडेक्स मतलब जहां आके लोग अपनी अपनी आइडियाज, अपना सक्सेस, अपना फेलियर बताते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए। तो शाहरुख खान टेडेक्स चलाता था। शाहरुख खान इज द वन हु हैज वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। Along with, you just take the example of Mr. Amitabh Bachchan, very good हिंदी। आप जब भी वो हिंदी में बात करते हैं तो उनको सुनो, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं शब्दों का। कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से एकदम जुड़ जाते हैं। अपने प्राइम मिनिस्टर
मोदी जी लोगों से एकदम से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो वहां जहां जा रहे हैं वहां के वोकेबुलरी यूज करते हैं। जहां अगर महाराष्ट्र में आते हैं तो शुरुआत जय महाराष्ट्र से करेंगे, तो सब लोग एकदम से जुड़ जाते हैं। मैंने एक एपीजे अब्दुल कलाम का स्पीच सुना था, जिन्होंने सातारा सैनिक स्कूल में वो स्पीच दिया था। आप यूट्यूब में उसको देख सकते हैं। उन्होंने आते ही सिर्फ इतना बोला, कसं काय बरं आहे का। पूरा क्राउड एकदम इंस्पायर। क्यों? उन्होंने हमारी लैंग्वेज में बोला। अब देखो ये हुआ क्या है, कम्युनिकेशन गेट कनेक्ट विद द पीपल। कम्युनिकेशन का एक अपना महत्व है, एंड सो इट इज अ सॉफ्ट स्किल। आई होप आई क्लियर माई पॉइंट। Body language, this is one of the important soft skill. Body language, non-verbal skill. कितने लोग क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं? How many of you interestingly listen to cricket commentary, especially सिद्धू बाजी या आकाश चोपड़ा? कितने लोग सुनते हैं? Nobody? क्रिकेट में ना जब भी ऐसा होता है कि अपोजिट टीम हारना जा रहे, मतलब दे आर अबाउट टू लूज या दे आर ऑन द वे टू लूज, बहुत ज्यादा विकेट गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा रन आ रहे हैं, तो सामने वाली अपोजिट टीम होगी ना, उनके शोल्डर्स एकदम से नीचे चले जाते हैं, रिलैक्स। और जो रन बना रहे हैं, जो विकेट ले रहे हैं, उनका चेस्ट एकदम ओपन हो जाता है। ओके, ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज डिस्प्लेज व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव। आपका फेस डिस्प्ले करता है। आपका दोस्त आता है या आपकी फ्रेंड आती है और आप उसको देख के सिर्फ इतना बोलते, क्या बात है आज एकदम से नर्वस लग रही हो। वो तो बोलती कि यार मैं घर से तो इतना बन ठन के निकली थी, मैं एकदम शर्ट पैंट अच्छा करके निकला था, इसको कैसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। आपका फेस, आपके टीचर आपको पहले से पकड़ लेते हैं कि आप घबरा रहे हैं, आप कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि वो आपका फेस रीड करते हैं। ओके, आप इंटरव्यू में जाते हो, आप कैसे बैठते हो, किस तरह से बैठे हो आप, क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स है ना, वो बाहर वेटिंग लॉन्ज में भी आपको देख रहे हैं थ्रू कैमरा। अभी ये नई टेक्निक है, जहां वेटिंग रूम है, वो वेटिंग रूम कैमरा के थ्रू इंटरव्यू को कनेक्टेड है। इंटरव्यूअर्स को दिख रहे हैं आप लोग, आप किस तरह से बैठे हो, आपने फाइल कैसे पकड़ी है, आपने आपके लेग्स किस तरह से रखे हुए हैं, आप आपके हाथों को किस तरह से होल्ड किए हुए, आपने ऐसा रखा है, हाथों को ऐसा रखा है, किस तरह से बैठे हो आप, और आर यू टोटली रिलैक्स। जब आप बात कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज है क्या, आप लैंग्वेज या तो आपकी जो बोली है वो कितनी स्पष्ट है, ये सब देखा जाता है बॉडी लैंग्वेज में। और इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? एक एटीट्यूड चाहिए। कौन सा एटीट्यूड चाहिए? आई कैन कैरी माई बॉडी। आर्मी वाले लोग देखो, सुबह शाम मार्च करते रहते, उनके दोनों हाथ ऐसे हिलते रहते, शोल्डर वाइड, चेस्ट ओपन एंड चिन ऑन द ग्राउंड लेवल। ऐसे नीचे नहीं रहती चिन उनका, ये जो जिसको हम हनवटी बोलते हैं, एकदम पैरेलल टू द ग्राउंड। आपको सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना है। ऑल यू पीपल विद मी? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, आपकी जो चिन्ह है, मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ये जो है ना, इसको आपने ग्राउंड लेवल पे रखना है। ओके, ये जो शोल्डर से आपके, इसको वाइड ओपन करना है और चेस्ट को थोड़ा सा बाहर ऐसे। ओके, और आपने फील करना है और आपने बोलना है, यार मुझे मार्क्स नहीं अच्छे आए थे। अब जब उसको है ना एकदम सौरव वाली फीलिंग है ना, दुखद वाली फीलिंग को लेके बोलना है, आपकी जो चेस्ट है ना अपने आप अंदर चली जाएगी बोलते वक्त, आपके शोल्डर आगे आ जाएंगे जब आप उसको फील कर रहे हैं। तो देखो, अगर आप आपकी बॉडी लैंग्वेज कंटिन्यूअसली ऐसे रखते हैं, वाइड ओपन आर्म्स, शोल्डर्स, चेस्ट ओपन, chin on the ground level and just feel the confidence, इसको आप 21 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं ऐसी बॉडी लैंग्वेज को, आपका कॉन्फिडेंस लेवल झट से स्विच हो जाएगा एंड
जस्ट डू इट बिफोर गोइंग टू योर एग्जाम। एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम रिवीजन करने से पहले आपका ये पोज होना चाहिए, और आप फिर फील करो कि जो आप कर रहे हो ना वो एकदम कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Yeah. Now, written communication. This is another part of the communication. Written communication, क्या लिख रहे हैं आप, किस तरह से लिख रहे हैं, लिखते वक्त कितने स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सारा आपका रिटन कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अभी जस्ट स्कूल डेज में चले जाते हैं थोड़ा सा, 10वीं तक। कितने लोगों को आदत थी जब आपका क्लास चल रहा है ना, एकदम से नोटबुक के पीछे वाले पन्ने पे आना और कुछ ना कुछ ड्रॉ करना? कितने लोगों का ये हैबिट था कि ना नहीं था, ये बताइए। था सर मेरा। गुड हाँ सर। गुड। और अब जो दो लोग हैं ना, गर्ल्स में से एक वॉइस मुझे गर्ल्स का था। व्हाट इज योर नेम? यस, फीमेल वॉइस। एंड फ्रॉम बॉयज क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष। ओके, एक आशीष है, दूसरा इंद्रायणी। गुड इंद्रायणी। गुड नेम इंद्रायणी। सो इंद्रायणी, जब आप ये लास्ट वाले पेज पे जो भी आप वर्क फ्लावर बनाएंगे या फिर कोई डिजाइन बनाएंगे, आपके इंटरेस्ट वाला, या तो आशीष, दोनों के लिए क्वेश्चन, आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चल रहा है, आपको ध्यान आता था कभी कि पीछे जाके कुछ करें? नो सर। नो। नो सर। जब आपका मन बोर हो रहा है उस चीज को, तब आप लिखते थे। और क्या लिखते थे जरा याद करना। आप लिखेंगे या तो आप करेंगे जो सबसे अच्छी पसंदीदा चीज है आपकी। मतलब आप अगर समझो कि आशीष को अच्छा लगता है कि लैंडस्केप ड्राइंग करे, तो वो एकदम से ऐसे पहाड़ निकालेगा, नदी वगैरह ड्रॉ करेगा, या तो कोई ऐसी चीज जो उसके मन को अच्छी लगती हो। उस वक्त देखना आपका जो हैंडराइटिंग होगा वो अच्छा आएगा, आपकी ड्राइंग होगी वो अच्छी आएगी, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो 100% आपके साथ है। रिटन कम्युनिकेशन में यही होता है। जब आपका इंटरेस्ट का टॉपिक होगा, इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होगा, तो आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा आ जाएगा। पेपर शुरू किया आपने लिखना, पहले 2 पेजेस पे हैंडराइटिंग इतना अच्छा आता है, और आगे जाके हैंडराइटिंग इतना खराब हो जाता है कि आपका टीचर पूछता है फिर ये तुम्हारा हैंडराइटिंग है जो पहले शुरू किया था? रीजन, तब तक हम अपनी जो सोच है ना उसको मिक्स कर चुके हैं। क्योंकि मिक्स कहां हो चुकी है? नॉलेज, स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, इन तीनों में मिक्स हो चुका है हैंडराइटिंग। इसलिए हैंडराइटिंग भी एक सॉफ्ट स्किल है, और ये अपने दिमाग के साथ चलती है। जितना ज्यादा इंस्पायर्ड दिमाग होगा उतनी अच्छी हैंडराइटिंग भी आएगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रेजेंटेशन स्किल, जो हम अभी कर रहे हैं। आप खुद को मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं खुद को आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। इससे पहले मैंने क्या किया था? प्रेजेंटेशन से पहले मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया, उसका डिजाइन बनाया, उसका कलर सिलेक्ट किया, कंटेंट डिजाइन किया, उसके बाद मैंने पहले सारा पढ़ा। प्रेजेंटेशन स्किल है। देखो, अगर आपको मेरा टॉपिक पता था सॉफ्ट स्किल, कितने लोगों ने गूगल में जाके ये डेफिनेशन पता किया कि व्हाट इज सॉफ्ट स्किल? जस्ट गिव मी आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड टू फाइंड आउट व्हाट इज सॉफ्ट स्किल? एनीबडी? Nobody? How many of you heard about millennial generation and Z generation? Can you hear me, Chaitali madam? यस सर। यस सर। तो ये आशीष, आई थिंक इट वाज आशीष वॉइस, इज इट? यस सर। या आशीष, ये आपने कभी सुना है मिलेनियल जनरेशन या जेड जनरेशन? नो सर। जेड जनरेशन मतलब जो 2000 के बाद बर्थ किए हुए लोग,
85 से लेके 2000 तक जिन्होंने जन्म लिया, मतलब हम लोग, वो आते हैं, मतलब 80 से लेके 20 तक वो आते हैं मिलेनियल में। और आपका जनरेशन आता है जेड जनरेशन। जेड जनरेशन इसीलिए क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो, लेकिन आपकी क्लास को देख के ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि आपके पास, हर एक के पास स्मार्टफोन है, हर एक के पास गूगल है। अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, वर्ड आता है कि जिसका मीनिंग मुझे पता नहीं है, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू इमीडिएटली टाइप इनटू द गूगल बॉक्स एंड गूगल विल आंसर इट फॉर मी। कितने लोगों को एलेक्सा पता है? एलेक्सा, हे गूगल, हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड? Yes, sir. देखो, मैंने सिर्फ यहाँ गूगल बोला तो मेरा फोन मुझे बोलने लगा, यू डोंट हैव एक्सेस टू योर वाईफाई, प्लीज स्विच ऑन योर वाईफाई। हम लोग इस जनरेशन में जहां पे कोई चीज इंफॉर्मेशन वाइज नामुमकिन नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू जस्ट हैव योर प्रेजेंटेशन स्किल, you just have ability to present yourself to get what you want. So presentation skill can be broadly classified, categorized into the physical, oral, electronic. Physical, oral and electronic. Physical मतलब जो मैं सामने हूँ, oral मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, electronic मतलब जिस मीडिया से मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, जैसे कि हम गूगल से बात कर रहे हैं, इट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, मैं क्या वे यूज कर रहा हूं? नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ थ्रू ऑल थ्री। मैं फिजिकली आपके सामने हूं, मैं बोल रहा हूं मतलब ओरल, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब थ्रू कंप्यूटर वी आर कनेक्टेड। ओके, लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरे पूरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल चाहिए, मेरे हाथ के ऊपर, मेरे आंखों के ऊपर और मेरे शब्द के ऊपर। फिजिकल, ओरल, इलेक्ट्रॉनिक, I must have ability to understand what is a PowerPoint presentation, how it can be made best possible to understand to my audience. Okay, ये सब चीजें आएंगी तो मैं प्रेजेंटेशन कर पाऊंगा। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड ऑन प्रेजेंटिंग आइडिया इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। आप लोगों को शंतनु नायर, हैव यू हर्ड अबाउट शंतनु नायर? The No, sir. youngest CEO from टाटा, यंगेस्ट सीईओ। अभी जो टाटा ने, रतन टाटा जी ने अपना बर्थडे मनाया, एक फोटो वायरल हुआ था, उनके साथ एक लड़का था आपकी एज का, उसका नाम है शंतनु नायर। ही इज फ्रॉम पुणे, बीटेक स्टूडेंट। ही प्रेजेंटेड हिज आइडिया टू टाटा एंड ही गॉट इम्प्रेस। देखो, और आज वो यंगेस्ट सीईओ, उनके डिपार्टमेंट का हेड है। जितने भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, टाटा सर इनका ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लेते हैं, शंतनु का। लुक एट दैट वेरी यंग बॉय, सिंपली बाय प्रेजेंटिंग हिज आइडिया इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रॉपर सोर्स, रीच टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। जब भी हम किसी आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, लुक एट योर ऑडियंस, स्पीक इन अ नेचुरल वे, कॉन्वर्सेशनल वॉइस। आपका वॉइस मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। जहां पे ऊपर जाना चाहिए वहां ऊपर जाएगा, जहां पे स्लो करना वहां स्लो हो जाएगा। सो अप्रोप्रिएट वॉइस मेक्स प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। एंड आफ्टर दैट, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूं बीच बीच में, आपको आवाज आ रही है, मैं ये ठीक से समझा पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं, आई हाउ टू चेंज इट अकॉर्डिंगली, तब जाके मैं प्रेजेंटेशन ठीक से दिया ऐसे बोल सकता हूं। गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. Good. Now, teamwork. This is another important skill. If you look at 10 years before, it was a mono leadership. Now it is not mono leadership. Now it's a team leadership. अकेला बंदा कोई कुछ नहीं कर पाएगा. Now we need some people should have a hand together and have a different mentality, different ability, so as we can achieve more and more success. So people either gender, different age groups, different qualification, different status,
different skills work as a team for a common objective, for a common goal. And any company, any organization is only successful after largely coordinated efforts of its employee. टीम वर्क ही काम करेगा. जहां टीम वर्क काम करेगा वो वाला ऑर्गेनाइजेशन, वो वाला डिपार्टमेंट सबसे आगे चला जाएगा. ओके, तो एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे को समझना, एग्रीबलनेस एंड कोऑपरेशन इज द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ एनी टीम लीडर, एनी टीम मेंबर. प्रोफेशनल इथिक्स. अब देखो सारे एग्जाम ऑनलाइन चल रहे हैं. आपने एग्जाम ऑनलाइन दिए या ऑफलाइन दिए? ऑनलाइन. Online. ऑनलाइन दिए. अब प्रोफेशनल इथिक्स कहाँ आता है? देखो, मुझे पेपर भेजा गया, मेरे मैडम ने, मेरे सर ने मुझे पेपर तो भेजा, और मुझे वो पेपर गूगल पे या गूगल मीट पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे मुझे उसको सॉल्व करना है. सो व्हाट आई विल डू फॉर, आई विल टेक हेल्प ऑफ गूगल कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, या फिर मैं याद करूंगा क्योंकि मेरा टीचर सामने नहीं है मुझे सुपरवाइज करने के लिए, तो मैं थोड़ा लिबर्टी ले लेता हूं और गूगल में सर्च करता हूं आंसर को. ये एक ऑप्शन ये है. दूसरा ऑप्शन ये है, कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट लुक एट एनी सोर्सेस, आई विल ट्राई टू राइट माई आंसर एट माई ओन. लाइंस कम आ जाएंगे लेकिन जो भी होगा वो मेरा होगा. प्रोफेशनल इथिक्स. ओके, मुझे पता है ना मैं क्या कर रहा हूं, सही गलत. सो दैट इज इथिक्स. एंड इंडिया में प्रोफेशनल इथिक्स इज अ नीड ऑफ आवर. बहुत ज्यादा जरूरत है. When a person is at the work spot, he must think of his work only. He must put his heart and soul into the work. Each employee is organic part of the organization, must try to contribute his might to successful functioning of the organization. मैं कितना भी छोटा हूं, भले ही वो एक इंस्टीट्यूट का एम्प्लॉय हो, उस इंस्टीट्यूट का वो प्यून हो या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, एनी पार्ट, इफ ही डिलीवर हिज बेस्ट प्रोफेशनली ही विल बी बेस्ट, organization will be best. So everyone has to follow that professional ethics. Understand? That is how we can develop professional ethics as a skill. Now leadership skill. Leadership skill means I have to take entire responsibility of the task. I will take my team to the success. I will trust each of my member and I always keep smiling. कोई भी प्रॉब्लम हो, just smile. आपको एक अलग से फीलिंग आएगा कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इफ नॉट, आई कैन शेयर इट टू माई अथॉरिटीज, आई कैन शेयर इट टू माई फ्रेंड्स एंड लेट्स सॉल्व इट टुगेदर. दिस इज कॉल्ड एज लीडरशिप स्किल्स. एवरीबडी हैज टू acquire the skills. And the last one is a time and stress management. This is very important for you people because right now, as per the report, most stress community is the student and parents because they are more worried about how will they get placed. Parents are more worried about how my child will get placed. Now you need to prioritize the work. जो लोग लास्ट सेमेस्टर में है, लास्ट ईयर में है, उन्होंने अभी प्रायोरिटाइज करना है वर्क को, शेड्यूल करना है आपके वर्क को टाइम के हिसाब से, और वर्क शेड्यूल या वर्क टाइम अलॉट करना है. कौन सा टाइम, कौन सा काम करना है, पहले कौन सा काम करना है. अभी मुझे पहले जो असाइनमेंट्स पेंडिंग है वो कंप्लीट करनी है या आने वाले एग्जाम के लिए मुझे प्रिपेयर करना है. आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. बीच बीच में आपको थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस रिलीव करना है. एंड ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स. ऑलवेज busy, remains busy in the learning new things. It will keep your brain busy, brain active, and accept that the responsibility for yourself is your actions. आपकी खुद की जिम्मेदारी है आप करना क्या चाहते हो और आप कर क्या रहे हो. Now while solving the problem, look at the problem first
and then try to find out what are the sources we have to conquer this challenge. Finally, be grateful always. आपके पास मोबाइल है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट. आपके पास अच्छा कॉलेज है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट. यू हैव गुड पेरेंट्स विथ यू, बी ग्रेटफुल. मतलब आपने शुक्रिया करना है नेचर का, भगवान का, सुपर पावर का. आपको शुक्रिया करना है कि यस, थैंक यू गॉड, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड, आई हैव वेरी गुड कंपनी, आई हैव वेरी गुड फैमिली. एंड फाइनली, लव योरसेल्फ. Meditate, love yourself. Your stress will be down. You can easily utilize your time, well productive time. Okay, so this is all about the different soft skills. That's all from my side. Thank you very much. These are my contacts. If you have any query, even after this, you can contact me, you can call me, you can drop me a mail. I used to take morning sessions for students for emotional intelligence, career counseling, interview preparation, resume writing. If you have any doubt, I can solve that. You can attend my sessions. You can join my YouTube, Instagram for all your queries. You're always welcome. Thank you very much. I'm stopping my sharing. Thank you very much, sir. The session is now open for question and answer. If Yes, anybody ma'am. have any Thank you. query regarding this personality development soft skill, then Yes, please ask. I'll be happy if you switch on your camera and ask me questions. Please switch on your cameras. सर्वांनी कॅमेरे चालू करा. आणि कुणाला सरांच्या लेक्चर बद्दल कमेंट्स पण द्यायचे असेल तर देऊ शकता. Yes, please, please, always. आणि इंग्लिश नाही, मराठी, हिंदी. Yes, चिंगराक मारक. Yes, sir. Hi, you're from Northeast. Yes, sir. Yeah, good. Good to see you. So presently you are at your home or in the campus? Sir, Are you at your home or at the campus? at home, sir. Good, good. I can see greenery outside. Wonderful. Yes, please tell me. Any question? Any question? Any doubt that you want to clear? No, sir. No doubt. Good, great. Anybody else? Ashish, Vaishnavi, Nikita, Sonal, Somnath, then Aniket, Mr. Thakur. Yes, anybody? काहीतरी क्वेरी असेल का? सगळंच वरतून गेलं? सर आपण जेव्हा स्पीच करायला जातो ना तेव्हा आपल्यातला आत्मविश्वास कसा वाढवायचा? त्याच्यासाठी चांगला उपाय काय माहिती का? प्रेझेंटेशन जाण्यापूर्वी 3 डीप श्वास घ्यायचे. पहिल्या श्वासाला हे सांगायचं, डीप श्वास घ्यायचे आणि शक्यतो जवळ पाण्याची बॉटल ठेवायची छोटी. आपला घसा कोरडा होतो, तो होऊ द्यायचा ना. डीप श्वास घ्यायचे आणि पहिल्या श्वासाला सांगायचं, मी जे प्रिपरेशन केलेले दॅट इज द बेस्ट वन आय कॅन डू. दुसऱ्या श्वासाला स्वतःला सांगायचं, माझे ऑडियन्स यांना माझ्या टॉपिक बद्दल पूर्ण समजणार आहे. आणि तिसरं सांगायचं की थ्रू आउट प्रेझेंटेशन मी कुठेही अडकणार नाही, हे स्वतःला सांगायचं. एक कॉन्फिडन्स लेवल वरती जाऊन तुम्हाला हे लक्षात येईल की आता तुमचं घाम येणं, पर्स्पिरेशन थोडस कमी झालंय. हे प्रॅक्टिसनं करावं लागेल. इट इज नॉट वन टाइम ऍक्टिव्हिटी, यू हॅव टू प्रॅक्टिस इट. येस, एनीबडी? स्वामीनाथ काय बोलायचंय का? येस, व्हेरी स्वामीनाथ. येस, स्वामीनाथ. स्वामीनाथ, प्रियंका, निकिता. यप, स्वामीनाथ, प्लीज प्लीज. तर पहिल्या वेळेस असं होतं म्हणजे आपण कुठेही गेलो तर घाबरतो सर कोणतीही गोष्ट सांगायची. सपोज आता मी तुम्हाला बोलताना सुद्धा घाबरतोय. येस येस, त्याचं कारण काय माहिती का? त्याचं कारण माहिती का? आपल्याला आपण कधी स्वतःला व्हॅल्युएबल ठरवलंच नाही. आपल्याला नेहमी असं वाटत राहतं नाही आपल्या मताला काही महत्व नाही, आपलं कोण ऐकणार आहे. सगळ्यात महत्वाचं आहे ना हे सांगायचं स्वतःला की
आय एम अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी अँड आय नो. मला जे विचारायचं का नाही ते बाकीच्यांसाठी क्षुल्लक असेल, पण माझ्यासाठी ते खूप महत्वाचं आहे. जेव्हा तुम्ही ना आता 4 लोक समजा तुम्ही कुठं पार्टीला गेले किंवा कुठं तरी गॅदरिंगला गेले, पण पहिलं असं होतं का तर मी कसं बोलायला चालू करू. नवीन लोक आहेत सगळे, पण तुम्ही काय करायचं त्याच्यासाठी एक गोष्ट प्रॅक्टिस ठेवायची, नेहमी स्वतःच्या चेहऱ्यावर स्माइल असलं पाहिजे. तुमचा चेहरा सगळं सांगतो. तुम्ही चेहऱ्यावरती स्माइल ठेवा आणि समोरच्या माणसाला फक्त तुम्ही बस स्टँडवर उभे राहिलेले तुम्ही फक्त स्माइल द्या. कंडक्टरच्या इथे समजा आता तुम्ही बसमध्ये बसणार आहे, कंडक्टरच्या इथे नाव असतं माहिती आहे तुम्हाला, प्रत्येकाचं नाव असतं का लेबल असतं. उद्या ट्राय करायचं सोमीनाथ, केव्हा जेव्हा प्रवास चालू कराल तेव्हा नाव वाचायचं. समजा त्याच्यावर लिहिलेलं आहे, आता मी चाललेलं आहे मला दिसलं स्वामीनाथ असं लिहिलेलं आहे. मी असं विचारलं, समजा आता माझ्यापेक्षा वयाने मोठे तर मी काय विचारेल त्यांना माहिती आहे का, त्यांचं नाव आहे समजा तिथं लिहिलेलं आहे स्वामीनाथ पाटील. मी त्यांना विचारेल पाटील सर, पाटील काका किंवा पाटील मामा काही, मी त्यांना नावाने असं विचारेल किती वेळ लागेल साधारणतः इथं पोहोचायला. एवढा क्वेश्चन आणि डिस्कशनला सुरुवात. पहिले त्यांचं नाव घेतं, त्यांना बरं वाटणार. आपल्याला नाव माहित नाही पण काकानी सुरू करा, सरनी सुरू करा. पण अनोळखी माणसाशी नेहमी आपण एक पाऊल पुढे जाऊन बोलायचं. कुठे चाललाय तुम्ही प्रवासात असेल, तुम्ही कुठे जाणार आहे, मी इथपर्यंत जाणार आहे. डिस्कशनला सुरुवात होईल. तुमच्या क्लासमध्ये नवीन मुलगा आला, कुठून आला बाबा तू, कुठला आहेस तू, काय आहेस, स्माइलने सुरुवात होती. पहिली चेहऱ्यावर नेहमी स्माइल पाहिजे. तुमचे शोल्डर बाहेर, चेस्ट अप आणि मग बोलायला सुरुवात करा. कॉन्फिडन्सच कॉन्फिडन्स, अडचणच येणार नाही. आता शुभम आहे की नाही, आय कॅन अंडरस्टँड. शुभम विचार करतोय आता मी काय विचारायचं, तो त्याचे ओठ आहेत की नाही, बॉडी लँग्वेज. इट्स अ, ज्यावेळेस आपण असं करतो ना, हे काय आहे, इट्स अ हेजिटेशन, एक प्रकारची भीती. विचारू की नको, एक आपल्या डोक्यात चालू आहे. आणि इंग्लिशमध्ये विचारायचं का हिंदीत विचारायचं का मराठीत, फॉरगेट अबाउट द लँग्वेज. सिम्पली आस्क थ्रू दी रेग्युलर लँग्वेज. तुमची जी लँग्वेज आहे ना त्या लँग्वेज मध्ये विचार. घाबरायचं नाही बिलकुल. डोळे समोर पाहिजेत, समोर बघायचं, डोळ्यात डोळे घालून बोलायचं, काही अडचण नाही. येस, आणखी कोणाला काय शुभम विचारायचंय का काय तुला, शुभम पवार? येस सर. सर तुमच्या मते सगळ्यात महत्वाची सॉफ्ट स्किल कोणती आहे, जी यंग युथने अडॉप्ट केली पाहिजे? कम्युनिकेशन. तुम्हाला बोलता आलं पाहिजे. ज्या माणसाला बोलता येतं, स्वतःचे विचार मांडता येतात, तो माणूस लोकांच्या पर्यंत पटकन पोहोचतो. मी जिल्हा परिषद शाळेत शिकलो, इंग्लिश अजिबात येत नव्हतं. 12वी पर्यंत कसलंच इंग्लिश नव्हतं. 12वी नंतर ज्यावेळेस लक्षात आलं आपल्याला की इंग्लिश शिवाय पर्याय नाहीये, इंग्लिश शिकावं लागेल, इंग्लिश शिकलो. परदेशात पण गेलो, तिथेही प्रेझेंटेशन केले, तिथेही लोकांशी बोललो. एकही ओळखीचं नव्हतं, म्हणजे एसटीतून डायरेक्ट विमानात, रेल्वेचाही प्रवास केला नव्हता. पण ज्यावेळेस लक्षात आलं की नाही की बोलण्याशिवाय पर्याय नाही. आपल्या मराठीत एक म्हण आहे, बोलणाऱ्याचा कोळसा पण विकला जातो, म्हणजे माती विकली जाते, आणि न बोलणाऱ्याचं सोनही विकलं जातं. सगळ्यात महत्वाचं, तुम्ही सांगा तुमच्या जवळपास आसपास जो माणूस चांगला बोलतो की नाही, तो लोकांना सगळ्यांना माहिती असतो. बरोबर की नाही? हो सर, बरोबर. येस सर. तुम्हाला बोलता आलं पाहिजे, आणि चांगलं बोलता आलं. नुसतं बोलता आलं नाही, म्हणजे चांगलं बोलता आलं पाहिजे. दॅट इज दी प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री. तुमची आयडिया समोरच्या पर्यंत पोहोचवता आली, डन. येस प्रियांका want to ask something. प्रियांका रेज हँड. तर आपली स्पीच ऑडियन्सला इंटरेस्टिंग वाटायला पाहिजे, म्हणून काय केलं पाहिजे? स्टोरी. जेणेकरून आपण स्टोरी वापरायची. स्टोरी. प्रियांका, तुम्हाला गोष्ट सांगता आली पाहिजे, येस सर. रिअलिस्टिक गोष्ट सांगता आली पाहिजे. मी तुम्हाला नरेंद्र मोदी एवढ्यासाठी सांगितलं, नरेंद्र मोदी बोलण्याने सगळ्यांना कंट्रोल करतात. ते तुम्हाला तुमच्या जवळचं एक्झाम्पल घेतील आणि तुम्हाला सांगतील. कुठलाही चांगला स्पीकर पाहिजे,
तो तुम्हाला स्टोरीने सुरुवात करेल. तुम्हाला जर समोरच्या माणसाला होल्ड करून ठेवायचं असेल तुमच्या टॉपिक मध्ये, तर तुम्हाला स्टोरी टेलिंग आलं पाहिजे. ती स्टोरी टेलिंग तुमच्या सब्जेक्टशी रिलेटेड असायला हवी. आणि सॉफ्ट स्किल मधली ती एक महत्वाची स्किल आहे अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग. आणखी प्रियांका? नो सर. गुड. अजून कुणाला काही प्रश्न आहेत का? सर मी प्लीज प्लीज. सर आय हॅव अ सिच्युएशन हिअर. सलोनी, राईट? Yes, sir, Saloni. या सलोनी, गो अहेड. Sir, if we are hired somewhere and they are asked a important or difficult task to do, and you are told that there is a condition, you have to just tell on the spot that will you be able to perform that task or no, or just refuse if you don't know anything about it. So, as per your suggestion, what will you tell? No, I prefer if they ask me, you have a difficult task to do, and it is your option whether to accept it or not. So your answer should be very diplomatic that I'll accept this once I know what kind of task it is. Without knowing any problem, jump to the problem is a suicide. It was a great answer, sir. Yes, Thank yes, you. yes. Without answer means without problem, you simply or blindly going to anybody. मतलब ते असं झालं की तुम्हाला प्रवासाला जायचंय, तुम्हाला कुठे जायचंय माहित नाही, आणि तुम्ही फक्त गाडी चालू करायची, चालू पडायचं. तुम्ही पोहोचणार कुठेच नाही, तुमची एनर्जी वाया जाणार. डिफिकल्टीची लेवल ही नंतर ठरेल. पहिलं मला हे समजलं पाहिजे की मला कुठला रोड जायचंय. मग मी ड्राईव्ह, मला माहिती, माझ्या स्किल माहिती आहेत, मी किती कसलाही खडतर रोड असताना मी ड्राईव्ह करेल, पण मला रोड माहिती पाहिजे. येस सलोनी, थँक्यू. Right, Anybody sir. else? कुणाला काही आहे का प्रश्न? ओके. Great. Good interaction. I like it. Sir, I'm very thankful from Department of Pharmacy, Government Polytechnic, Jalgaon. Thank you. Sir, I appreciate your presentation and also thankful for giving such a wonderful presentation for our students. And तुम्ही जे सॉफ्ट स्किल बद्दल जे बारीक सारीक पॉइंट सांगितले, अगदी ते मुलांच्या उपयोगीच आहे. आणि डेफिनेटली पॉलीचे ऍज वेल एज फार्मसीचे स्टुडंट हे ते आता सेकंड इयरचे आहे, त्यांना आता बाहेरच पडायचंय, काही महिन्यातच त्यांचं एक्झाम होऊन बाहेर पडतील ते. तेव्हा इंटरव्ह्यू वगैरे फेस करताना किंवा कुठल्या प्रकारचं प्रेझेंटेशन देताना नक्कीच हे सॉफ्ट स्किल ते यूज करतील याची आम्ही आशा बाळगतोय. आणि सर्व पॉइंट तुमचे अगदी व्यवस्थितरित्या मुलांना समजले, कारण की तुमची लँग्वेज जी होती ती अगदी छान होती, अगदी कमी शब्दामध्ये मोजक्या भाषेमध्ये मोजकं समजून देणं असं आपण म्हणतो ना, तर त्या प्रकारे तुम्ही अगदी छान समजवलं आहे. आणि आमची मुलं शक्यतो बऱ्याचशी मुलं ते ग्रामीण भागातले आहे, त्यांना लँग्वेज प्रॉब्लेम वगैरे आहे, त्याच्यामुळे ते बोलायला थोडंसं अडकतात. तर कसं बोलावं, तर तुम्ही जे पॉइंट सांगितले का भाषेला महत्व नाही, म्हणजे कुठली भाषा वापरताय, पण आपलं मत प्रकल्पाने व्यक्त करता आलं पाहिजे, आपल्याला प्रेझेंट करता आलं पाहिजे, तो Yes, पॉइंट exactly. अगदी त्यांच्यासाठी योग्य आहे. आणि सर, तुमचं बायोडेटा वगैरे बघितलं आणि तुमच्याबद्दल जे काही इन्फॉर्मेशन आहे त्यातनं मला माहितच आहे की तुमचे शेड्यूल हे खूपच पॅक असतं, पण तरी तुम्ही वेळात वेळ काढून आमच्या विद्यार्थ्यांना जे मार्गदर्शन केले आहे त्याबद्दल मी तुमची सर्वस्वी आभारी आहे. आणि एसपीडीसी सेल्स आणि गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक जळगाव तर्फे तुम्हाला सर्टिफिकेट ऑफ ऍप्रिसिएशन इथे प्रेझेंट करत आहे, व्हर्च्युअली प्रेझेंट करत आहे सर, ते तुम्ही ऍक्सेप्ट करावं. नंतर मी तुम्हाला मेल करणारच आहे. ओके मॅम, ओके. So here is certificate of appreciation. Thank you ma'am, thank you very much, thank you for your appreciation. Visible झालंय ना? Yes ma'am, I can see that. Okay. So thank you very much sir. या मॅडम, जाता जाता फक्त मला मुलांना एक सांगायचंय. हो सर. सगळ्या मुलांसाठी सगळ्यात महत्वाचं, तुम्ही आहे ना तुमच्या डोक्यातला हा कॉम्प्लेक्स काढून टाका की मी ग्रामीण भागातून आलेलो आहे, माझी भाषा चांगली नाहीये, मला इंग्लिश बोलता येत नाही,
किंवा मी बोलताना घाबरतो. सगळेजण, जो आज सगळ्यात चांगलं भाषण देणारा माणूस असेल ना, त्यांनी कधीतरी सुरुवात केलेली असते. त्याच्यासाठी तो पहिल्यांदा कोणाला तरी नवीन माणसाला भेटलेला असतो. कुठली म्हणजे प्रत्येक गोष्ट ही पहिल्यांदा कधी नाही कधी झालेली असते. असं नाही की ते डायरेक्ट झालेलं आहे. आपण कुठल्याही आईच्या पोटातून शिकून आलेलो नाही आहोत. आणि ह्या सगळ्या कशा आहेत, या अक्वायर करण्याच्या गोष्टी, या आपल्याला 100% बदलता येतात. न घाबरता फक्त तुम्हाला कॉन्फिडेंटली प्रेझेंट होता आलं पाहिजे. आणि प्रेझेंट होण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा तुमचा चेहरा आणि तुमची भाषा. जितकं जास्त हास्य तुमच्या चेहऱ्यावर असेल, स्माइल चेहऱ्यावर असेल, इझिली ऍक्सेप्टेड बाय एनी कम्युनिटी. लहान मुलगा पहा, तुम्ही जर बस स्टँडवर किंवा एअरपोर्टवर, रेल्वे स्टेशनवर कुठे गेलात, लहान मुलगा असेल, त्याच्याकडे बघितलं तुम्ही हसला की ते हसतं तुम्हाला बघून. कम्युनिकेशनला काही लागत नाही. कम्युनिकेशन म्हणजे भावना पोचल्या पाहिजे, वर्ड्स नंतर. त्याच्यामुळे भाषेची काळजी करायची नाही, बॅकग्राऊंडची काळजी करायची नाही, की आपण कुठल्या बॅकग्राऊंड आलो, माझे वडील शेतकरी आहेत, माझे वडील काम करतायत, काही नाही. आजची न्यूज सांगतो, काल परवाची. प्रगती और श्रेयशी यादव, उत्तर प्रदेश मधली मुलगी, 50 वेळा रिजेक्शन झालं. डिप्लोमा पॉलिटेक्निक म्हणून झालेली मुलगी, डिग्री मधून झालेली मुलगी, इंजिनिअरिंग, 50 वेळा रिजेक्शन. इंडियन कंपनीने रिजेक्ट केलं. 51 वेळेला. आज गुगलची न्यूज आहे, टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये जाऊन वाचा किंवा इंटरनेटवर टाका. 50 वेळा रिजेक्ट झालेली मुलगी 1 कोटीचं पॅकेज वर्षाचं घेऊन गुगलने तिला आज सिलेक्ट केलं. बिकॉज ऑफ पेशन्स. ती खचली नाही, भाषा येत नाही म्हणून ती घाबरली नाही. आपल्यापेक्षाही खराब भाषा इंग्लिश बिहारचे लोक बोलतात, उत्तर प्रदेशची लोक बोलतात. ती भाषा असून देखील तिनं स्वतःला व्यवस्थित प्रेझेंट केलं अँड शी गॉट द ड्रीम जॉब. त्याच्यामुळे तो न्यूनगंड कॉम्प्लेक्स काढून टाका मनातून. आणि जेव्हा केव्हा तुम्हाला वाटेल ना, बोलायला, ओपनली बोलायला तयार, हेजिटेशन करू नका. ओके स्वप्नील, परफेक्ट. Yes, sir. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. Thank you very much. I'm leaving. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving your Thank precious you, sir. time, and your information is very helpful to us for Thank you very developing. much. Thank you. Thank you, sir. ओके. फीडबॅक फॉर्मची लिंक टाकलेली आहे, ग्रुपवर पण आहे आणि इथे चॅट बॉक्स मध्ये पण टाकली. सर्वांनी फीडबॅक फॉर्म भरून द्या. दोन्ही सेशनच्या एकत्रच फीडबॅक फॉर्म आहे, त्याच्यामुळे एकच फीडबॅक फॉर्म तो भरून द्या आज. ओके. सो थँक्यू व्हेरी मच. उद्या वेळेमध्ये जॉईन व्हा, 10:15 जॉईन करा उद्या सर्वांनी. ओके. सो नाऊ लिव्ह द मीटिंग.